Assalamu alaikum and welcome to today's lecture. Today we are going to discuss about the Division 3 and Division 4 of the Construction Specifications Institute, about what are the elements in these divisions, that is concrete and masonry, and how we go about estimating these concrete and masonry items. First of all, let's discuss what are the components most common in the concrete. First of all, we have a slab, beams, columns, and footings. So these are actually the load transfer sequence in a building. Let's see these. What are these? So this horizontal plate member at the top is called slab, and these line members horizontally placed at the edges are called beams, and the line members which are vertical are called columns, and then we have the footings at the bottom. और सिंपली लेट्स डिस्कस कि आपके ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टली आपकी स्प्रेड होगी थ्रू आउट इज कॉल्ड स्लैब. स्लैब से लोड ट्रांसफ़र होगा ऑन द बीम्स, बीम से लोड ट्रांसफ़र होगा आपके कॉलम्स पर, एंड देन फ्रॉम कॉलम्स टू द फुटिंग्स. तो दिस इज द सीक्वेंस एंड दीज आर द मेंबर्स जो कि आपके यूजली होते हैं. तो ये आपकी स्लैब है और ये येलो लाइंस आर द बीम्स, और फिर उसके नीचे कॉलम्स हैं और कॉलम्स के नीचे आपकी फुटिंग्स हैं. Pilasters. What are pilasters? Pilasters, you can say, is simply a short column. Concrete pilasters. Concrete pilasters are the short columns which are actually supporting a wall. So this is pilaster. Next is walls. We all know walls क्या होती हैं, retaining walls, kind of walls. Stairs, we all know treads, risers, base slabs, landing slab, etc. Piles, what are concrete piles? Concrete piles are concrete piles. Concrete piles are actually like columns. They are supporting the weight of heavy structures. For example, let's say bridges. Bridges usually have the piles under those, or in a bigger project, let's say the Lahore Metro Orange Train, we have the piles installed under their footings. Similarly, Burj Khalifa, we have piles there. So piles are these. These are the piles poured into the which are poured into the ground to support the heavy weights. Then as poured concrete decking, usually what happens is USA construction में we place metal decks and then pour the concrete slab over it. Let's say poured concrete over deck. तो what happens is कि आप framing members install करते हो, और framing members install करने के बाद you place a deck of metal like this, और फिर उसके ऊपर आप concrete pour कर देते हो for a smooth finish which is varying in thickness from half inches or to about 4 inches, you can say 4.5 inches. तो इस तरह से आप इसके ऊपर भी कंक्रीट स्लैब पोर कर देते हो. नेक्स्ट इज केजोन्स. व्हाट आर केजोन्स? लेट्स गूगल इट. concrete caissons. Poured concrete caissons. Caissons are actually more or less like piles, but these are more heavier than पाइल्स, जो कि आपके ब्रिजेस या बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो सिंपली सेइंग कि ये आपके कॉलम्स की तरह से ही होंगे, वर्टिकल मेंबर्स यू कैन से, और पाइल्स की तरह से. ये देखो, हैवी वेट एंड देन वी हैव द केजोन्स एट देयर फुटिंग्स. नेक्स्ट इज प्री टेंशन कंक्रीट. प्री टेंशन कंक्रीट इज़ द वन जिसमें हम देयर आर टू टेक्निक्स फॉर द कंक्रीट टेंशनिंग. टेंशनिंग मीन्स उसको एडिशनल स्ट्रेंथ देने के लिए ये दो प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं. यू कैन सिंपली गूगल. प्री टेंशनिंग इज के पहले कंक्रीट बार्स को पहले रेनफोर्सिंग बार्स को टेंशन में लाया जाता है, फिर कंक्रीट पोर की जाती है, एंड दे आर रिलीज टू ऐड इन मोर स्ट्रेस टू द कंक्रीट मेंबर्स. एंड देन इज द पोस्ट टेंशन कंक्रीट. पोस्ट टेंशन कंक्रीट इज कि आप स्लैब
पोर कर देते हो कंक्रीट एंड देन यू स्ट्रेच आउट दी रेनफोर्सिंग बार्स फिर उसको आप रिलीज करते हो आफ्टर देयर सम सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, तो उसके बाद उसमें स्ट्रेस इंड्यूस हो जाती है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज़ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट आप सबको आइडिया कि क्या होती है। रेनफोर्समेंट इज़ एक्चुअली द कंक्रीट रेनफोर्सिंग मेंबर्स। कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए जो आपके स्ट्रक्चर मेंबर्स होते हैं उनमें आप reinforcement use करते हो. So one is longitudinal bars. Longitudinal bars are those which are running along the length of the member. For example, अगर column है तो longitudinal bars would be in vertical direction from bottom to top. Then is transverse bars. ट्रांसवर्स बार्स जो उसके परपेंडिकुलर रन कर रही होंगे. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ स्लैब विच इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, तो एक डायरेक्शन जिसमें ग्रेटर लेंथ है दोज वुड बी द लॉन्गिट्यूडनल बार्स, और जो दूसरी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू दैट वो आपकी ट्रांसफर बार्स होंगी. नेक्स्ट इज शॉर्टर डायरेक्शन, लॉन्गर डायरेक्शन. इट सिंपली इंडिकेट्स दीज टू टर्म्स विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. शॉर्टर डायरेक्शन जो कि shorter length of member होगी, और longer direction which is longer direction of the member. Then is the dowels. Dowels is actually the continuity of the reinforcing bars while pouring the concrete members. Let's say it's dowel bars. डोवेल बार्स क्या होती हैं? आप क्या करते हो जब पोर करते हो कुछ भी, तो यू लीव सम लेंथ ऑफ दी reinforcing bars to be out of the concrete members, ताकि जब दोबारा से नेक्स्ट पोर हो तो ये उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम प्रिपेयर कर सकें. डबल बार्स इन कॉलम्स. तो आपने ये अक्सर देखा होगा बिल्डिंग्स में भी कि आप जब पोर करते हो कंक्रीट तो रेनफोर्समेंट बार्स जो हैं उसमें से बाहर आ रही होती हैं, और आप फिर वहीं से आगे रेनफोर्समेंट पोर करना कंटिन्यू कर देते हो. जैसे ये देखो, ये एक्सटेंडेड बार्स हैं ताकि आप जब नेक्स्ट पोर करो कंक्रीट का तो ये उसमें एम्बेड हो जाएं और अच्छा बॉन्ड बना सकें. नेक्स्ट इज़ वी हैव टाइज, स्पाइरल्स. टाइज और स्पाइरल्स को डिस्कस करते हैं. पहले तो डिस्कस करते हैं ना कि रेनफोर्समेंट होती क्या है. reinforcement in concrete slab. Okay, let's see this image. इस image में you can see कि there are bars running in this direction and also in this direction. तो एक direction which is longer उसको हम longitudinal bars कह देंगे, and which is shorter is called transverse bars. तो ये तो आपका हो गया कंक्रीट की लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बार्स. उसके बाद यूज़ किया जाता है टाई बार्स. ओके, इन अ बीम रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट बीम. बीम में क्या होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज़ अ बीम. तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं विच आर कलर्ड इन रेड, दीज आर रनिंग अलोंग द लेंथ, तो इनको हम लॉन्गिट्यूडनल बार्स कहते हैं. और ये जो आपके पास रिंग से बने हुए हैं इसके इन रेक्टेंगुलर शेप, इसको हम टाइज कहते हैं. ये डेफिनेट स्पेसिंग पे होते हैं और इनको इसलिए यहाँ पर फिक्स किया जाता है ताकि जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं वो मूव ना करें. और इट्स ऑल्सो फॉर दी shear strength as well, which we know, which we have studied in our engineering course. तो ये आपका longitudinal bars और ये आपकी टायर्स होती हैं. ओके, देन इज स्पाइरल्स. स्पाइरल्स क्या होती हैं? स्पाइरल्स यही टायर्स अगर सर्कुलर शेप में तो हम उसको स्पाइरल्स कहते हैं. कंक्रीट रेनफोर्समेंट स्पाइरल्स. तो यू कैन सी कि अगर आपके पास ये सर्कुलर शेप में हो तो हम इसको स्पाइरल्स कहते हैं, विच इज़ रनिंग ऑल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कॉलम. ठीक है, ये रेड जो हैं ये आपके पास स्पाइरल्स हैं और ये जो ब्लू हैं ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं. ये आप सेक्शन भी देख सकते हो. ये डॉट्स जो हैं ये आपको शो कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स, और जो इसके अराउंड है रिंग वो है आपका स्पाइरल.
Okay, then we have is number of bars. Number of bars is actually the designation of the bars कि bars को define किस तरह से किया जाए. तो bars को define किया जाता है by numbers. Numbers का mean क्या होता है? For example, we have number 3 bar, नंबर 4 बार, नंबर 5 बार. इसको सिंपली अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट द टर्म सूतर विच इज़ वेरी कॉमन है. सूतर. और इसका साइज होता है आपके पास 1/8 ऑफ एन इंच. अगर इंच के 8 पीसेस किए जाएं तो 1 पीस को आप सूतर कहोगे, जो कि यहाँ पे लोकल टर्म्स में यूज़ होता है. तो अगर नंबर 3 है तो इट इज़ 3/8 इंचेस ऑफ डायमीटर ऑफ द बार. तो नंबर 3 इज़ 3 सूतर. नंबर 4 इज़ 4 सूतर. नंबर 5 इज़ 5 सूतर. तो दिस इज़ एक्चुअली द डेजिग्नेशन ऑफ द रेनफोर्समेंट बार्स. और फिर इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं? यूज़ इसलिए करते हैं कि एक तो ये आपको ड्राइंग्स में डिफ़ाइन किया जाता है कि रेनफोर्समेंट बार कौन सी कहाँ पर यूज़ हो रही है. सेकेंडली इनका वेट डिफाइंड होता है, जिससे इजीली हम लेंथ यूज़ करके इनका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट से हमने नंबर 3 बार का वेट, नंबर 3 बार वेट पर लीनियर फीट. तो यू कैन सिंपली सी के 0.376 पाउंड्स पर फुट. तो आपके पास अगर लेंथ हो तो यू कैन सिंपली फाइंड आउट कि कितने पाउंड्स आपका स्टील होगा. तो यूजुअली द स्टील इज सोल्ड इन वेट इन द मार्केट. ओके, नेक्स्ट इज के कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. ये जनरल डिस्कशन में हमने पहले भी किया था, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अगेन. तो कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑन द ग्राउंड जाएगा और जाकर क्या करेगा, सबसे पहले आपकी जहाँ जहाँ पे फाउंडेशन पोर हो रही है वहाँ पर ग्रेडिंग करेगा, यहाँ पर एक्सकवेशन करेगा, बैकफिल करेगा टू सेट के आपने कितना डीप डाउन जाना है टू पोर द कंक्रीट. और उससे रिलेटेड जितना भी अर्थवर्क होगा वो सारा का सारा कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर करेगा. नेक्स्ट इज़ द वेपर बैरियर और द मॉइस्चर बैरियर. क्या करते हैं कि जब हम कंक्रीट की ट्रेंच बना लेते हैं, उसको कॉम्पैक्ट करने के बाद द ग्राउंड, हम क्या करते हैं, वी प्लेस अ पॉलीथीन शीट जो कि यूज़ होती है फॉर द वेपर बैरियर और मॉइस्चर प्रोटेक्शन, ताकि जो वाटर है वो आपका वाटर या मॉइस्चर पास थ्रू ना करे टू द कंक्रीट एंड टू द सॉइल डाउन. तो उनमें ये एक बैरियर प्लेस किया जाता है और इसका यूनिट यूजुअली मिल में होता है. मिल इज़ अ यूनिट विच इज़ 1/1000th ऑफ एन इंच. 1000th ऑफ एन इंच. तो अगर 1 इंच का 1000th पार्ट लिया जाए तो वो आपका मिल यूनिट होता है. लेट्स सी मिल यूनिट. Sorry, it's mil unit. मिल यूनिट इज 1000th ऑफ एन इंच. तो वेपर बैरियर की जो थिकनेस होती है जो आपकी शीट की होती है, इट मे बी 6 इंचेस और 6 मिल और 8 मिल. तो ये डिफाइन किया होता है इन प्लान्स. देन इज फॉर्मवर्क. फॉर्मवर्क क्या होता है? फॉर्मवर्क इज एक्चुअली अ फ्रेमवर्क जिसको यूज़ करके आप कंक्रीट पोर कर सकते हो. फॉर्मवर्क. तो इसको अगर देखा जाए तो कॉलम के अराउंड ये जो कवर किया हुआ है इसको आप फॉर्मवर्क कहते हो. इसमें आप कंक्रीट पोर करते हो और जब कंक्रीट सेट हो जाती है तो फिर आप ये फॉर्मवर्क रिमूव कर देते हो. ये फॉर्मवर्क है. तो ये वुड का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है. तो ये अराउंड द बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स जहाँ पर भी कंक्रीट पोर करनी होगी उसके अराउंड ये यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ वी हैव रेनफोर्समेंट. रेनफोर्समेंट इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये स्टेप वाइज मैंने प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है कि कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर करता किस तरह से अपना स्कोप ऑफ वर्क को कवर है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सकवेशन करेगा, देन वो मॉइस्चर बैरियर प्लेस करेगा, देन वो फॉर्मवर्क प्लेस करेगा. फॉर्मवर्क प्लेस करने के बाद वो उसमें रेनफोर्समेंट प्लेस कर देगा, वही जो हमने अभी डिस्कस किया है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स, टाइल्स, स्पाइरल्स और व्हाट हैव यू. देन इज द कंक्रीट पोर. कंक्रीट पोर मींस कि आपने concrete the mix of the cement sand
एंड द क्रश एंड द वाटर, तो उनका मिक्स जो है वो आप पोर कर दोगे। एंड देन इज द शटरिंग। शटरिंग क्या होती है? शटरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म वर्क। शटरिंग होती है फॉर द ईज ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल आपने हाइट्स हाइट्स को, फॉर एग्जांपल एट डिफरेंट हाइट्स यू वांट टू वर्क ऑन, तो शटरिंग इज एक्चुअली द सपोर्ट फॉर द स्लैब जो कि आपके अंडर साइड के, इट्स पार्ट ऑफ द, in simply saying it is formwork, which is a term. Shuttering is a formwork which is a term used in Pakistan locally. And then is scaffolding. Scaffolding क्या होती है? Scaffolding are actually the members. Scaffolding is a framework which is used to work at different heights और at different locations जहाँ पर आपकी easy access otherwise possible नहीं होती. This maybe you can see कि ये ग्रेटर हाइट है एंड यू वांट टू वर्क ओवर हियर, तो ये जो आपका फ्रेमवर्क है जिस पर ये खड़े होकर मेसन्स या लेबरर्स काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। ये देखें, ये स्कैफोल्डिंग है। ओके, ये आपके, तो ये मेटल का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है। दिस इज स्कैफोल्डिंग, जो कि कंक्रीट पोर करने के लिए नहीं यूज़ होती बल्कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ वर्किंग ऑफ द लेबरर्स एट डिफरेंट लोकेशंस। Then we have next is masonry. Masonry में what is in masonry? Masonry में CMU was concrete masonry units. CMU walls. CMU walls कंक्रीट ब्लॉक्स यूज़ होते हैं जिसमें आप कंक्रीट फिल भी कर सकते हो और रेनफोर्समेंट प्लेस कर सकते हो। तो ये कंक्रीट ब्लॉक्स को हम CMU कहा जाता है, कंक्रीट मेसनरी यूनिट। कंक्रीट ब्लॉक्स यूज़ होते हैं। तो वॉल्स हो सकती हैं, कॉलम्स हो सकते हैं, पिलास्टर्स हो सकते हैं, तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। देन इज़ द ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या होती हैं? फसाद ब्रिक्स यूजुअली यूज़ होती हैं USA में फॉर द फसाद वर्क्स। तो ये भी कंक्रीट मेसनरी मेसनर मेसनरी कॉन्ट्रैक्टर ही ये इंस्टॉल करता है, और यू कैन सिंपली से कि मेसन ही इंस्टॉल करता है, क्योंकि दीज आर एक्चुअली प्रीकास्ट आपको बनी बनाई मिलती हैं एंड यू सिंपली गो इंस्टॉलिंग दीज मेंबर्स। देन इज प्रीकास्ट मेंबर्स बहुत से होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल प्रीकास्ट कंक्रीट पैनल्स होते हैं। प्रीकास्ट कंक्रीट पैनल्स मींस कि आपके पास प्रीकास्ट कंक्रीट प्रीकास्ट कंक्रीट पैनल्स, तो आपके पास ऑलरेडी मेड कंक्रीट मेंबर्स आते हैं। यू जस्ट गो अबाउट इंस्टॉलिंग देम एट साइट। यहाँ भी यूज़ होते हैं, US में भी यूज़ होते हैं, यूजुअली फॉर द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी फार ऑफ होती हैं। देन इज़ द होलो कोर स्लैब्स। होलो कोर स्लैब्स जिस तरह से वॉल्स हैं इसी तरह से आपके पास प्रीकास्ट कंक्रीट प्रीकास्ट कंक्रीट पैनल्स, यहाँ पर स्लैब्स। तो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स आपके पास आते हैं जो कि सिंपली आप प्लेस करते जाते हो ओवर द बीम्स एंड कॉलम्स। तो दीज आर कॉल्ड होलोकॉस्ट स्लैब्स। सिंपली आप प्लेस करते हो एंड यू आर डन। तो ये आप गूगल कर सकते हो, यू कैन फाइंड मोर इन्फो। देन इज द बीम्स एंड लिंटल्स। लिंटल्स क्या होते हैं? लिंटल्स आर शॉर्टर लेंथ बीम्स विच आर प्लेस्ड ओवर द ओपनिंग्स लाइक डोर्स एंड विंडोज। इसी तरह से प्रीकास्ट स्टोन मेंबर्स या कॉपिंग स्टोन, प्रीकास्ट स्टोन मेंबर्स। तो डेकोरेटिव कुछ स्टोन्स होते हैं जो कि फसाद पर इंस्टॉल किए जाते हैं। इस तरह के ब्लॉक्स हो गए। यहाँ पे ये देखें, ये ब्लॉक और ये कॉलम कैपिटल्स किसको कहते हैं? कॉलम कैपिटल्स इनको कहते हैं, ये जो इनके टॉप पर है। उसके अलावा
उसके अलावा आपके पास प्रीकास्ट और भी हैं प्रीकास्ट कॉइन्स। ये आपके एक्सटीरियर पर स्टोन इंस्टॉल है, डेकोरेटिव स्टोन। तो इस तरह से आपके पास ये आपके पास स्टोन इंस्टॉल है, लिंटल स्टोन, और एट डिफरेंट लोकेशंस ये मेडेलियन। तो इस तरह के आपके पास मेंबर्स आते हैं जिनकी हम काउंट्स करते हैं, तो ये आपके पास प्रीकास्ट मेंबर्स होते हैं। तो ये हो सकते हैं। देन इज़ द कॉपिंग स्टोन। कॉपिंग क्या होता है? कॉपिंग स्टोन, कॉपिंग इज़ एक्चुअली placed over the walls, ताकि अगर for two purposes, one is for the decoration and second reason is कि अगर आपकी बारिश हो तो आपका जो वाटर है वो इस पर स्टे ना करे, बल्कि it moves away from the wall। तो this is called copying, this stone is called copying stone। तो ये कंक्रीट का भी हो सकता है, प्रीकास्ट भी हो सकता है। कंक्रीट का होगा तो हम इसकी क्वांटिटी करेंगे, कॉपिंग स्टोन होगा तो उसको करेंगे। देन इज़ एक्सेलेंट बेसिक्स। अब हम चेक करेंगे कि हाउ वी एस्टिमेट द कंक्रीट एंड how we actually estimate using the drawings and how we can prepare the Excel sheet for the concrete estimates. Okay, let's move there. Thank you.